بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آئینی کمیٹی پر مشاورت کے لیے قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ختم ہو گیا ہے۔ اجلاس چیئرمین خصوصی کمیٹی خورشید شاہ کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، بیرسٹر گوہر، وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، شہری رحمان، عامر ڈوگر، ایاز صادق اور اعجاز الحق، سینیٹر عرفان صدیقی، انوشا رحمان، سینیٹر کامران مرتضی بھی شریک ہوئے۔ آپ کو بتائیں راجہ ناصر عباس شامل پاکستان پیپلز پارٹی کا مجوزہ ترمیمی مسودہ پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت بارے قیام کی تجویز تحریری طور پر دی تھی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل 175 میں آئینی عدالت کا قیام شامل، آرٹیکل 175 A B D E F میں ترامیم کی تجویز شامل۔ آئینی عدالت وفاق میں جبکہ صوبوں کی سطح پر بھی ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے۔ مسودہ ترمیم کے مطابق ہائی کورٹ لوور کورٹس کی اپیل سن سکتے ہیں۔ مسودہ میں وفاقی آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار بھی طے کیا گیا۔ ججز کی تعیناتی کے لیے آئینی کمیشن آف پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مسودہ صوبائی سطح پر ججز کی تعیناتی کا عمل بھی آئینی کمیشن آف پاکستان دیکھے گا۔ خصوصی کمیٹی کا اجلاس کل دوبارہ ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آج پارلیمانی کمیٹی کی تفصیلی میٹنگ ہوئی، تمام جماعتوں نے انپٹ دی، آئینی عدالتوں میں تعیناتیوں کے پروسیس کا ڈرافٹ کمیٹی میں شامل، وزیر قانون نے حکومت کے پوائنٹس پیش کیے۔ وکلا برادری کی انپٹ بھی کمیٹی میں پیش کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے موقف دہرایا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر کے متفق کا ڈاکومنٹ بنانا چاہتے ہیں۔ امید یہ رکھتے ہیں کہ تمام اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بامعنی بات چیت کر سکیں گے۔ حکومت کافی بااعتماد ہے۔ پارلیمانی کمیٹی ہے جس میں ساری سیاسی جماعتوں کے نمائندگی ہے، ایک بڑا تفصیلی میٹنگ چلا جس میں تمام جماعتوں نے انپٹ دی۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی اوریجنل کانسیپٹ کی جو ڈرافٹ ہے، جہاں تک آئینی عدالت اور آئینی عدالت میں تعیناتی کا یا اپوائنٹمنٹس کا پروسیس، وہ ڈرافٹ جس میں ہم نے حکومت کی سے اس کی شروع میں شیئر کیا اور جو ہم نے کچھ دیر سے مولانا صاحب کے ساتھ بھی شیئر کیا تھا، وہ ہم نے آفیشلی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس پہ پیش کیا، جو صوبائی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور وفاقی لائرز کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ وزیر قانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا۔ ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ جو تمام اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ہم ایک میننگ فل انگیجمنٹ کر سکیں گے، اور ایسے صورتحال نہیں ہے کہ ہم نے بس مخالفت سے کرنا ہے۔ سربراہ جے جو آئی مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت نے پہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ شیئر کیا، اس کے بعد حکومت سے بات چیت شروع ہو گئی، دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ جے جو آئی پیپلز پارٹی آپس میں بات چیت کریں گے، کوشش کریں گے ایک ڈرافٹ پر اتفاق ہو۔ وہ اپنا ڈرافٹ مسلم لیگ نون اور ہم پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے۔ پہلی مرتبہ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، اور اب اس کے بعد بات چیت شروع ہوگی گورنمنٹ سائڈ کے ساتھ ہماری، اور دیکھتے ہیں پھر بات کہاں تک پہنچتی ہے۔ جے یو آئی پیپلز پارٹی بات چیت کرے گی آپس میں، وہ کوشش کریں گے کہ ایک ڈرافٹ پہ اتفاق ہو، پھر وہ اپنا ڈرافٹ جو ہے اپنے اتحادی مسلم لیگ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہم اپوزیشن کی پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ ایک کانسنسس۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت نے کوئی ڈرافٹ پیش نہیں کیا، ہم تجویز تب دیں گے جب ہمارے پاس ڈرافٹ موجود ہو۔ کس چیز کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، کوئی خط و خال تو بتاؤ کن کن آرٹیکلز میں آپ نے کیا ترامیم کرنی ہے۔ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ جو ڈرافٹ ریلیز ہوا ہے میڈیا کو یہ فیک ہے، یہ جنون نہیں ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہی ڈرافٹ ہے۔ تو کون کون سے؟ آج بھی کسی نے پورا ڈرافٹ نہیں دیا، کوئی بھی ڈرافٹ ہمارے پاس ہینڈ اوور نہیں ہوا تھا۔ وہ آرٹیکل کچھ ججز ریلیٹڈ کچھ آرٹیکلز تھے، وہ لا منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے وکیلوں نے کچھ فیڈ بیک ان پہ یہ دیا۔ کل کے آج کی میٹنگ ختم ہے، کل کے لیے دیا ہے 12 بجے۔ ہماری ریکویسٹ تو یہی تھی کہ منڈے پہ لے جائے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کل 12 بجے ہم نے کرنا ہے، اور کل تک دیکھتے ہیں کہ کیا ڈرافٹ۔
दूसरी जानिब वजीर कानून आजम नजीर ताहिर ने पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास के बाद कहा, हमने अपनी और बार बॉडीज की तजावीज सामने रखी। ये वही ड्राफ्ट है जिसमें आईनी अदालत के कयाम की बात है। जुडिशल कमीशन को कैसे होना चाहिए, जजेस के एहतसाब का निज़ाम कैसा हो, जो जजेस काम नहीं करते इनके खिलाफ कोई कानून होना चाहिए। आज ये सारी चीज़ें फिर कमेटी में शेयर की हैं। पीटीआई ने मुसवदा देखने के लिए टाइम लिया है, राय नहीं दी। हमने बार बार कहा कि आप ड्राफ्ट पर अपनी राय दें। मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपना मुसवदा अभी तक नहीं दिया। हर किसी ने कागज़ को पढ़ के वोट करना है। पैकेज है, उसके इन राइटिंग थी जो तजावीज़ हमारी हैं और जो तजावीज़ बार बॉडीज़ ने उस दिन एग्जामन की थी, कुछ उनकी तजावीज़ थी, वो भी कमेटी के सामने रखी हैं। और ये तय हुआ है कि कल दोबारा बैठक होगी 12 बजे के बाद। अगर कोई जजेस की ट्रांसफ़र है तो वो इख्तियार जुडिशल कमीशन के पास हो, सदर के पास ना हो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमने शेयर की हुई हैं ऑलरेडी। देखिए, पीटीआई ने टाइम दिया है कि हम एग्जामिन करके दोबारा वापस आते हैं। उन्होंने आज कोई राय नहीं दी अपनी। पिछली दफ़ा भी यही था कि हमने उन्हें बार बार कहते हैं कि आप अपनी राय दें। मैंने तो आज जमीयत उलमा इस्लाम से भी कहा है कि आप अपना ड्राफ्ट भी शेयर करें हमारे। और उधर पीटीआई रहनुमा अमर डोगर ने कहा कि हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। हुकूमत ने जो ड्राफ्ट कमेटी में बताया है वो उजलत में था। पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट में क्लैरिटी है। हुकूमती ड्राफ्ट में अब हाँ मौजूद किसी एक पार्टी को या उसके लीडर को टारगेट नहीं करना चाहिए। आज ही ये दोनों ड्राफ्ट मिले हैं तो इसके ऊपर हम अपनी कमेटी के अंदर लेकर जाएंगे। इसको हम खुद बात करेंगे अपने अकाबरीन के साथ और फिर फजलुर रहमान साहब के साथ बात करेंगे कि वो और हम तकरीबन आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। पीपल्स पार्टी का आया उसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। गवर्नमेंट के ड्राफ्ट में वो इनपुट है जो उन्होंने वकला की तरफ से, बार काउंसिल से भी लिया है और अपने भी कुछ पॉइंट्स उसमें डाले हैं। अभी मैं समझता हूँ कि उसमें अबहाम मौजूद है। वो क्लैरिटी अभी तक नहीं आई। इसको मुशावरत के साथ हो और बैठ कर हो और किसी एक फ़र्द वाहिद की हमायत में ना हो और कौम के मफाद के बरक्स ना हो। इसके बाद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ तुर्कमेनिस्तान में होने वाली बैनुल-अक़वामी फोरम की साइड लाइन पर गैर रस्मी मुलाकात। दोनों सदर का दोतरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर। दोनों सदूर के मबैन एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात, खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ है। दोनों सदूर का दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की जरूरत पर जोर सामने आया है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर रस्मी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में देखा जा सकता है कि नायब वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी मौजूद हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर रहनुमा डॉक्टर आसिम भी मौजूद हैं और दीगर अफराद को भी देखा जा सकता है। सदर मुमलिकत को देखा जा सकता है वो इस वक्त रूसी सदर के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत कर रहे हैं। सिटी कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का मुकदमा, मुलजिम सारम बरनी की दरख्वास्त जमानत के समात। वकला सफाई ने अदालत में अपने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एफआईए जानबूझकर तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कई माह के बाद एफआईए ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। अदालत ने दरख्वास्त जमानत की समात 16 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समात पर भी वकला सफाई दलाइल जारी रखेंगे। इस हवाले से आपको बताएं, एफआईए जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। कई माह के बाद भी एफआईए ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। सिटी कोर्ट में बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्दोबदल का ये केस है। मुलजिम सारम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर समात 15 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी दरख्वास्त पर समात। पीटीआई वकील हामिद खान की जानिब से समात मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद ताखीर से नजरसानी दरख्वास्त दायर करने पर चीफ जस्टिस ने कहा, हैरानगी है मुतासरा फरीक तो फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। रिमार्क्स दिए लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है। इस्लामाबाद से बशारत राजा की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर समात की। दौरान समात चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन हो गए हैं या नहीं, जिस पर अकबर एस बाबर के वकील ख्वाजा अहमद हसन ने अदालत को बताया कि पीटीआई के इंटर पार्टी इंतखाबात मार्च में दोबारा हुए हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि ये इंटर पार्टी इंतखाबात का केस था। कुछ अजीम लोग अदालत में बैठे हैं जिन्होंने ढोल पीटा कि केस इंतखाबी निशान का था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि मुतासरा फरीक तो फौरी फैसले के खिलाफ नजरसानी करता है। हैरान कुन तौर पर इतनी ताखीर से नजरसानी दायर की गई और जल्द समात की दरख्वास्त भी नहीं दी।
केस में पीटीआई के 7 वुकला थे मगर आज एक भी पेश नहीं हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि लगता है पीटीआई फैसले पर नजरसानी नहीं चाहती थी। पीटीआई की जानिब से इल्तवा मांगना ताखीरी हरबा है, केस मुलतवी कर देते हैं मगर सच तो बोला जाए। इस मौका पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि पीटीआई के सारे वुकला नहीं आए, कोई जूनियर भी पेश नहीं हुआ, ये तरीका दुरुस्त नहीं है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वाज़ेह किया है कि इंसाफ के तकाज़ों के तहत केस मुलतवी कर रहे हैं। हामिद खान की इज़्ज़त के लिए केस मुलतवी नहीं करेंगे। बादशाह अदालत ने केस की समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में दौरान सख्त रिमार्क। प्लेट में अपना ही इतना ही खाना डालें जितना खा सके, वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। दरख्वास्त गुजार की वकील के साथ खुल काले कोर्ट में पेशी पर भी चीफ जस्टिस बरहम हो गए। ये कौन है जो साथ खड़े हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस्तफसार वकील ने मौक़िफ़ पेश किया कि ये दरख्वास्त गुजार हैं और खुद हाई कोर्ट के वकील भी हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सकें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है, जलाओ घिराओ बदमाशी ये हो रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे राजा बशारत से। बशारत, क्या हुआ समाअत में? जी, ये चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का वुकला के रवैयों पर मामूल के 2 मुकदमात में समाअत के दौरान सख्त रिमार्क दिए। उन्होंने कहा कि पेट में इतना ही खाना डालें जितना खा सकें, वकील को इतने ही मुकदमात लेने चाहिए जितने चला सके। इस मौका पर दरख्वास्त गुजार के साथ जो उनके वकील थे उनके साथ वो भी काले कोर्ट में रोशनी पर जाकर खड़े हो गए। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कौन है जो साथ खड़े हैं। वकील ने कहा कि ये दरख्वास्त गुजार है और खुद हाई कोर्ट के वकील है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा ये इसलिए साथ खड़े हैं कि हम पर प्रेशर डाल सके, वकला का कोई कंडक्ट नहीं रहा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने कौन आता है, जलाओ गिराओ बदमाशी ये हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये काम लेबर यूनियन करती थी, अब वकला हमें देख रहे हैं, कहते हैं हम अदालतों को ताले लगाएंगे, पता नहीं वकालत कहाँ चली गई। ये भी कहा कि अब बस चले, अब बस जल्द से जुलूस निकालें, डंडे मारें, शोर मचाएं, तकरीर करें, बस अदालत में उन्होंने बात नहीं करनी। दूसरों पर तकरीर करते हुए अपने गिरबान में भी जाके हर कोई आकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि आप शोर मचाओ, बस यही वकालत बची है। जी बहुत शुक्रिया बशारत राजा, समाअत का अहवाल बता रहे थे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रेफरेंस 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। फुल कोर्ट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल ऑफिस के अफसरान और वुकला शिरकत करेंगे। आपको बताएं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से रेफरेंस 10:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में होगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर हुकूमती जरगे के हमरा गुज़िश्ता शब अमन का अलम बुलंद करके जमरूद गए थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा जरगे में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी, आइन और पाक फौज के खिलाफ भी किसी किस्म की नारेबाजी नहीं होगी, किसी और मुल्क का झंडा लगाने की इजाजत नहीं, जरगे में मकामी मसाइल और मामलात पर बात होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा जमरूद जरगे की मेजबानी वज़ीर आला की ज़ेर एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत करेगी। जरगे के तमाम तर इंतज़ामात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत देखेगी। जरगे में तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। शुरका अपने मुतालबात वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और वफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखा ने कहा पीपल्स पार्टी के लिए इंसानी हुकूक और सियासी कारकुन के हुकूक की गुफ्तगू हमेशा अहम रही, लेकिन पीपल्स पार्टी में अब उस तरह की गुफ्तगू नजर नहीं आ रही। सियासी कारकुन भी जिस भी पार्टी का हो, अगर उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है तो ये लम्हा फिक्रिया है। आईनी तरमीम लाई जा रही है, हमें पता तो चले कि इसमें है क्या। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब हज़मा बुखारी ने कहा है कि फेक वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी FAA की तारीफ की। उन्होंने कहा पीटीआई के पास एक प्रोपेगेंडा सेल, लोगों की तौहीन के लिए ये प्रोपेगेंडा सेल इस्तेमाल होता है। एक एक बंदे के नाम पर जाली अकाउंट बने हैं। बानी पीटीआई ने प्रोपेगेंडे के लिए बाकायदा ग्रुप बनाए, किसी की जात को निशाना नहीं बनाना चाहिए। FIA ने जाली वीडियोस के हवाले से बेहतर काम किया। सोशल मीडिया को कवायद व ज़वाबित के तहत होना चाहिए। ब्राजील में भी X बंद कर दिया गया है। खेल के मैदान को रुख करें, मुल्तान टेस्ट की बात करें। पाकिस्तान टीम को बदतरीन शिकस्त, शाहीनों ने मुल्क की इज्जत खाक में मिलाने का वतीरा जारी रखा। शाहीकीन के दिल टूट गए। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए पहली इनिंग में 556 रन बनाए।
इंग्लैंड ने जवाब में 823 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दूसरी इनिंग्स में तू चल मैं आया की पॉलिसी पर अमल करते हुए पवेलियन लौटना शुरू कर दिया। पूरी टीम 220 रन पर ढेर, पाकिस्तान को 47 रन और एक इनिंग से शिकस्त।